ہمارے شہباز بھائی کے چھوٹے شہزادے محمد اعظم رضا کو میں پیش کر رہا ہوں چند مصرعوں کے ساتھ کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ ارے جو کرتے ہیں میرے آقا کی برائی، ارے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ آئیے حضرات محمد اعظم رضا کا ویلکم سواگت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے ساتھ کرتے ہیں، زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسنک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان کا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زور سے جن کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے در کو تھام لیتا ہوں، اور مشکلیں دور ہوتی ہیں مجھ سے جب میں غوث آدم کا نام لیتا ہوں۔ مشکل سبھی ہمارے گھر نہیں آتی کہ لکھائے گھر سے میں نے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ دنیا کا پہلا نبی پہلا انسان، جس کی اولاد میں تمام نبی ہے تمام ولی ہے، جس سے سلسلہ انسانیت چلی، حضرت آدم، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے بیارو، بیارو کے بیٹے سبحان اللہ، سبحان اللہ، طلحہ کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے سمر، عمر کے بیٹے صابر، صابر کے بیٹے سلیمان، سلیمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے علی رضا، علی رضا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے قدیمہ، قدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے نوحی، نوحی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے کلاف، کلاف کے بیٹے عبد منان، عبد منان کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے بے قصوں کا قص، بے رفو کا رب، جناب احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں سیدہ طاہرہ فاطمہ خاتون جنت کے تین شہزادے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کا بچپن میں انتقال ہو گیا، حضرت امام حسن مسنہ کے بیٹے حضرت موسیٰ ثانی کے بیٹے سیدی یعقوب، سیدی یعقوب کے بیٹے میرا میرا پیرے پیرے شاہ جیلا، محبوب سبحانی کو بیٹے ربانی شاہ مولا کائنات کے پہلے بیٹے، دوسرے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے سیدی عبد المطیر کے بیٹے سیدی عبد المسیر، سیدی عبد المسیر کے بیٹے سید سیاس الدین مکن سنگری، سید سیاس الدین سید سیاس الدین مکن سنگری کے بیٹے مگر تابع بلائے خواجہ غیث نواز ہارونی۔ ارے کیا بتاؤں کیا کیا معین الدین کا، یہ پورا ہندوستان ہے خواجہ معین الدین کا، بادشاہی پہلوی کر ہو چکاتے ہیں جہاں، ہند میں ایسا دربار خواجہ معین الدین کا۔ ارے ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر آ گیا ہوں میں، جب بھی دیکھتا ہوں میں روزہ معین الدین کا۔ ارے کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے کے ایک آواز کا، قبر میں رکھ دو سدرہ معین الدین کا، اور یہاں نوٹ بندی یہ لاکھ ہو جائے پھر بھی یہاں عرش تک چلے گا سکہ معین الدین کا، کیونکہ جو سمجھ چلتا ہے اسی کے ذہن سے کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप लोग खामोश बैठे, शोर ना बहुत आवाजें आ रही हैं थोड़ा शोर खामोश बैठे, ठीक है ना। सैयदना गौसुल पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तैयबा का एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ करूं ताकि आप उनकी अज़मतों को अपने सीने में बिठाएं। आज हम लोग हैं जब हमें कोई अपने घर बुलाता है तो पहले सोचते हैं कैसा खिलाएंगे, कैसा पिलाएंगे, कैसा घर होगा, कैसा खिलाया जाएगा, कैसा पिलाया जाएगा। जरा सी भी हमारी खातिर तवासु में 19 या 20 रुपए वाला मामला हो जाए, हम कह देते हैं आइंदा हमें दावत ना देना, तुम्हारे घर में अच्छा एसी नहीं है, तुम्हारे घर में अच्छा बेड नहीं है, तुमने अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये हमारी सोच है, लेकिन जब गौसे सकल इनकी जिंदगी को देखता हूँ तो मेरी आंखें दंग रह जाती हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक इलाके के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इलाके के पहुंचने के बाद आप अपने साथियों से कहते हैं इस इलाके का जो सबसे गरीब आदमी है उसके यहाँ मैं क़याम फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक गरीब के यहाँ क़याम फरमा रहे हैं। कुछ दूर चल के एक गरीब का घर नजर आया। जब वहाँ जाके पूछा कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके यहाँ क़याम करना चाहते हैं, उस गरीब ने कहा अल्लाह अल्लाह ये मेरी किस्मत की महराज होगी, लेकिन इतनी बड़ी खुदरात की मैं खातिर तवासु कैसे करूँगा। आपके साथियों ने कहा आपको खातिर तवासु की कोई जरूरत नहीं है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आएंगे, आपके यहाँ क़याम फरमाएंगे और आपको कोई मुश्किल न होगी। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस गरीब के यहाँ क़याम फरमाते हैं। उस गरीब के पास जो कुछ था उसने पेश किया। थोड़ी देर के बाद जब इलाके को पता चलता है कि गौसे पाक आए हुए हैं, उस इलाके के सरमाएदारों से लेकर, उस इलाके के बड़े बड़े टुर्राकों से लेकर, उस इलाके के बड़े बड़े मालदारों से लेकर सब गौसे पाक से मिलने के लिए चले आते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आता है, कोई 10,000 रुपए लेकर आता है, कोई 20,000 रुपए लेकर आता है, कोई चांदी लेकर आता है, कोई सोना लेकर आता है, कोई कपड़े लेकर आता है। भंडार लग गया तोहफों का। तो एक सरमाएदार ने गौसे पाक की बारगाह में अर्ज़ कहा गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका किफ़रत का मामला है, आपसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये घर बहुत छोटा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप यहाँ क़याम फरमाएं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नहीं मैंने इस घर का इंतखाब कर लिया है, मैं यहीं रहूँगा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के थोड़े दिनों के बाद जब आपके जाने का वक्त आया, जब आप उठते हैं तो इतनी दौलत जमा हो चुकी थी। वो गरीब कहने लगा सुभान अल्लाह ये गौसे पाक का करम है जो अल्लाह ताला ने गौसे पाक के कदम हमारे यहाँ रखवा दिए। जब गौसे पाक दरवाजे से निकलने लगते हैं तो अर्ज़ करते हैं ये जितना भी पैसा है, ये जितना भी माल है, ये जितना भी चांदी है, ये जितना भी सोना है, ये मैं तुझे गरीब, ये मैं तुझे तोहफे के तौर पे पेश करता हूँ, इसे कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चंद दिनों में उस इलाके के सबसे गरीब आदमी को उस इलाके का सबसे मालदार आदमी ये पोजीशन होती है अल्लाह वालों की। मैं आपके सामने मैं एक जुमले में अर्ज़ करूँगा, बस एक जुमले में। अल्लाह वालों की सोच में और हमारी सोच में बहुत फर्क है। हम माल पे मर मिटते हैं, वो आमाल पे मर मिटते हैं। हम अपने माल के अंदर 1 रुपए की भी कमी बर्दाश्त नहीं करते, वो आमाल के अंदर एक छोटी सी भी छोटी नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम माल की मोहब्बत में घुले जा रहे हैं, वो आमाल की मोहब्बत में घुले जा रहे हैं। क्या शान है गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और अगर मैं इस महफिल का मुशाहिदा करूँ तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद से यहाँ नहीं देख सकते। खुदा की कसम आज भी मेरी गौस के ताकत अल्लाह ताला ने मेरे गौस की आंखों में वो ताकत रखी है। अगर मैं इस महफिल का मुशाहिदा करूं तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद से यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बहुत बड़ी महफिल में खिताब फरमा रहे हैं, बहुत बड़े मजमे में खिताब फरमा रहे हैं। महफिल के दौरान बहुत से लोगों की आदत होती है कि महफिल के दौरान उनकी आंख लग जाती है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक बंदे की आंख लग गई है, आप उठते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं, उस आदमी के पास जाते हैं जिसकी महफिल के दौरान आंख लग गई थी। आप उसके सामने जाके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जब आप जीनों से उतर रहे थे तो लोग समझ रहे थे अब ये सोने वाले आदमी की खैर नहीं है, अब ये नहीं बच
बचेगा, अभी जलाले खौफ का शिकार हो जाएगा। लेकिन जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ बांधे खड़ा देखा, सब कहने लगे ये क्या माजरा है, ये क्या वजह है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांधे खड़ा हुए हैं। थोड़ी देर के बाद जब उस आदमी की आंख खुली, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सामने हाथ बांधे खड़ा पाया, घबरा गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बंदे ख्वाब में किसकी ज़ियारत कर रहा था। उस बंदे ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा था। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू आंख बंद करके दीदार कर रहा था, मैं आंख खोल करके दीदार कर रहा था। ये शान है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एक बंदा आंख बंद करके दीदार कर रहा है और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माथे की आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और आज की माएं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? क्या वजह है जो बच्चे डांसर पैदा हो रहे हैं? क्या वजह है जो बच्चे झूठ बोलने वाले पैदा हो रहे हैं? वजह सबसे बड़ी ये है कि बच्चा अपनी माँ की शक्ल में होता है तो माँ सीरियल देख रही होती है, माँ बिग बॉस देख रही होती है, माँ डांस देख रही होती है और डांस देख कर करके अपने जिंदगी के लम्हा को गुजार रही होती है। लेकिन गौसे पाक के माँ के किरदार को देखो। गौसे पाक की माँ इतनी अजमत वाली थी कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी माँ के शक्ल में थे तो माँ कुरान की तिलावत करा करती थी, इसलिए उन माओ के शक्ल में से हाफिज़ कुरान पैदा सुभान अल्लाह। इसलिए उन माओ के शक्ल में से हाफिज़ कुरान पैदा हुआ करते थे। आज की माँ अगर तुमने अपने बच्चों को बचपन में गौसे पाक की माँ के जैसा किरदार दिखाया होता तो तुम्हारा बच्चा भी आज तुम्हारी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाया हुआ होता। आज सामने आता है तो बच्चों को काम वालियाँ पालती हैं। आज माँ अपने बच्चे की इज़्ज़त सीरियल की वजह से नहीं करती। गुर्बत कितनी है, तुमने अपने बच्चों को प्यार ही कितना दिया, तुमने अपने बच्चों को प्यार ही कितना दिया। आओ गौसे पाक के माँ के किरदार को देखो, गौसे पाक के माँ के प्यार को देखो, गौसे पाक की माँ के शफ़क़तों को देखो। सवाल ये पैदा होता है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही सीधे की तड़प क्यों थी, नमाज की तड़प क्यों थी? क्योंकि उन्होंने बचपन में ही नहीं अपनी माँ के शक्ल में रहते हुए भी अपनी माँ को अल्लाह की याद में रोता हुआ देखा था। आज शायद किसी मुसलमान का अगर शायद ऐसा हो जहाँ रात की अंधेरी में बच्चे की आँख खुले तो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह की याद में मसल्ले पे रोता हुआ पाए, तड़पता हुआ पाए। लेकिन गौसे पाक की माँ इतनी अजमत वाली थी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब रात के अंधेरी में आँख खुलती थी तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ को मसल्ले पे अल्लाह की याद में तड़पता हुआ पाते थे, रोता हुआ पाते थे। इसलिए गौसे पाक के मन में ये जज्बा पैदा हुआ था। आज की माँ अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने किरदार को बदल दो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने। मैं अर्ज कर रहा था कुरान के ताल्लुक से। कुरान अल्लाह की वो किताब है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की सारी कैटेगरी बयान की है। एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज करने के बाद आपके सामने जरूर करना चाहता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर किसी को कुर्बे खुदा की दौलत से माला माल होना है तो दो चीजें अपनाएं, एक अक्ले हलाल और एक सच बोले, हलाल खाए और सच बोले। खुदा की कसम अगर कोई बंदा ये अपना लेता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी कुर्बी की दौलत से माला माल कर देता है। आपने देखा होगा कहीं हराम के 1 लाख रुपए बट रहे होते हैं। आप सोचते हैं मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मैं ये लाखों रुपए झूठ बोल करके कमा लेता हूँ। ये लाखों रुपए आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन रब ताला ये देखना चाहता है आप हलाल से चाहते हैं या हराम से। उस हराम को तो अगर आपने उस वक्त उस हराम को ठुकरा दिया तो उस हराम को ठुकराने के कुर्जे से चाहे से आपको 10,000 ही क्यों ना मिले, उसके अंदर लाखों की बरकत आती है, उसके अंदर करोड़ों की बरकत आती है। और बहुत लोग कहते हैं कि 1,000 के बीच में और 1 लाख के बीच में बरकत, इसको बरकत कहते हैं, इसको भी बरकत कहते हैं मगर दूसरे अंदाज से बरकत कहते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि आपके पास अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपने यहाँ से प्लान बनाया आपने हिसाब लगाया 1,000 के टिकट बैठ रहे हैं, 1,000 रुपए वहाँ रहने के बैठ रहे हैं और 1,000 रुपए वहाँ खर्च होने के बैठ रहे हैं, टोटल मिला के 3,000 रुपए बैठ रहे हैं। अब लेकिन कुदरत बरकत देना चाहती है तो कैसे दे? आपके पास आपका कोई दोस्त आता है वो आपसे कहता है कि भाई मेरी तमन्ना थी कि मैं आपको अपने साथ ख्वाजा की बारगाह में लेकर जाऊं। अब देखिए हाजिरी की हाजिरी हो गई, उनकी 3,000 रुपए बच गए। अगर अल्लाह ताला किसी को बरकत देता है तो ऐसे देता है। एक बात जो मैं आपके
सामने बोलना चाहता हूँ आपके सामने ये वाक्य और समाप्त फरमाएं। थोड़ा सा आगे आए अगर किसी को बाकी तो सुकून आवाज की आ रोटी रही रोटी से माला माल होना है तो कल मेरी नजरों से एक हदीस शरीफ गुजरी। नबी करीम अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुरहालका, अगर किसी को सुकून की रोटी से माला माल होना है तो ये चीज अपनाएं। अपने अहलो अयाल को हुक्म दो, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को हुक्म दो कायगा नमाज का। खुदा की कसम अगर कोई बंदा इसको अपना लेता है तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिस्क दिला देगा जहाँ का उसने ये किसी ऐसे वैसे का कौल नहीं, मदीने के ताजदार का कौल है जिसके मुंह से सच के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। में आपको यही पैगाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हो, अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हो, हलाल खाओ, सच बोलो। और ख़वातीनों को भी मेरा ये पैगाम है, अपने घर को डांस के अलावा, सीरियल्स के अलावा कुरान की तिलावत से आबाद करो। हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हमारे शाहबाज भाई के छोटे शहजादे मोहम्मद आजम रजा को मैं पेश कर रहा हूँ चंद मिसरों के साथ कि बुलबुल को फूल शम्आ को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्आ को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।